पंजाब में भी अब 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे। हमें करना आता है, हमने करके दिखाया है। अगर ऊपर ईमानदार सीएम होगा, अगर ईमानदार मंत्रिमंडल होगा, मैं चैलेंज कर सकता हूं नीचे का सारा ढांचा ठीक हो जाएगा। संधू साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि जी हमने बादल साहब को भी बोला था, वो भी बोले कि चुनाव के बाद कर देंगे। कैप्टन साहब को भी बोला था, उन्होंने भी कहा कि चुनाव के बाद कर देंगे। मेरी निवेदन है, एक बार केजरीवाल को बोल के देखो। द टीवी NRI देख रहे हो, मैं हाँ सुखवीर सिंह शेरगिल। विधान सभा चोणां नज़दीक आ रही ने 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਥ ਕੈਸਟਲ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 10 ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, 10 ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ। ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ 24 ਘੰਟੇ ਤੇ 7 ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਵੈਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੀਫੰਡ ਹੋਣਗੇ। 400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਰਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੈਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਫਤਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕੰਮ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਦਿਨ ਗੈਂਗਵਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਝਾਤ ਮਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾਓਗੇ। सबसे पहले मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं जिन जिन लोगों ने अपनी बात रखी। संधू साहब ने कई सारी बातें रखी कि इंडस्ट्रियलिस्ट्स को और व्यापारियों को आम आदमी पार्टी से बड़ी उम्मीद है। आम आदमी पार्टी को भी इंडस्ट्रियलिस्ट्स और व्यापारियों से बड़ी उम्मीद है। क्या उम्मीद है, मैं आऊँगा अभी इसके ऊपर। पैसा नहीं चाहिए आपका, लेकिन मेरे को क्या उम्मीद है मैं उस पर भी आऊँगा। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि पंजाब ऐसी जगह है जहाँ पे सभी धर्म, सभी जातियों के लोग, चाहे कोई कितना गरीब हो चाहे अमीर हो, इस धर्म का उस सब प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। 10 लाख की जमीन देते हैं, फिर एनहेंसमेंट होते रहते हैं, 50 लाख का नोटिस आ जाता है। चाइना में डिसीजन 24 घंटे में होते हैं। CII के जैन साहब ने बड़ी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी कमी है, कोई नए फोकल पॉइंट्स नहीं खुले। CLU वाली बात रखी, उस पर भी मैं अपनी बात रखूंगा। पवन जी ने कहा कि झूठे वादे खूब सुने हैं, सारी पार्टियां आती हैं, एक बार सरकार बन जाए तो अफसरों की अफसरशाही की ज़्यादा चलती है। जैसे अभी अमन अरोड़ा जी ने एग्जाम्पल दिया कि अफसर ने कहा जी हमने अपने मंत्री का ही काम नहीं होने दिया, आपकी तौकात ही क्या है।
मुकेश जी ने स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की बात रखी, वर्ल्ड क्लास स्टेडियम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए जी। दिल्ली में इस टाइम हमने बहुत सारे स्टेडियम बनाए हैं, पंजाब में भी खूब स्टेडियम बनाएंगे। एग्जीबिशन सेंटर्स स्पोर्ट्स के लिए होने चाहिए, केवल स्पोर्ट्स के लिए नहीं, सबके लिए होने चाहिए, कई सारे प्रोडक्ट्स के लिए होने चाहिए। एग्जीबिशन सेंटर्स बनाएंगे। जितेंद्र जी ने केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ से बात रखी, सुरेश गुप्ता जी ने रखी, और अभी एक भाई साहब, उनका नाम मैं विर्क साहब ने अपनी बात रखी। इन सबको मैं लिख रहा था, मोटे मोटे तौर पे 10 बातों पे आज अगर आपके सभी की सहमति है तो 10 बातों पे आज हम अनाउंस करते हैं कि ये करेंगे। नंबर 1, बिना बिजली के ना तो इंडस्ट्री चल सकती, ना व्यापार चल सकता, ना घर चल सकता, तो बिजली तो चाहिए। और जितने मैं अखबारों में पढ़ रहा हूं, लंबे लंबे पावर कट पंजाब के अंदर लग रहे हैं, इतने लंबे लंबे पावर कट से तो जिंदगी ही नहीं चल सकती। तो पावर कट खत्म करेंगे, 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे। और ये मैं कह रहा हूं अपने तजुर्बे से। जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी फरवरी 2015 में, जुलाई 2014 का मेरे को याद है 7-7, 8-8 घंटे के रात को पावर कट लगते थे। हमारी फरवरी 2015 में सरकार बनी थी और जुलाई 2014 में उसके 6-7 महीने पहले तक 6-6, 7-7 घंटे के पावर कट लगते थे। दिल्ली में बिजली की कमी नहीं थी, बिजली थी। जैसे पंजाब में भी बिजली की कमी नहीं है, बिजली प्रोड्यूस करता है पंजाब, बिजली की कमी नहीं है। प्रॉब्लम क्या थी दिल्ली में? तारे खराब है जी, ट्रांसफार्मर जल गया जी, तार जल गई जी, पुरानी तार है जी, ये वो। अगले 2.5 से 3 साल तक मैंने और मेरे बिजली मंत्री सतिंदर जैन ने गली गली में जाके खड़े होके तारे बदलवाई, ट्रांसफार्मर बदलवाए। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलती है। इन्वर्टर की दुकानें बंद हो गई हैं, इन्वर्टर की सेल बंद हो गई है, कोई इन्वर्टर नहीं बिकता आजकल दिल्ली के अंदर। 24 घंटे बिजली मिलती है दिल्ली के अंदर। पंजाब में भी अब 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे। हमें करना आता है, हमने करके दिखाया है, झूठे वादे नहीं कर रहे। संधू साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि जी हमने बादल साहब को भी बोला था, वो भी बोले कि चुनाव के बाद कर देंगे। हमने कैप्टन साहब को भी बोला था, उन्होंने भी कहा कि चुनाव के बाद कर देंगे। मेरी निवेदन है, एक बार केजरीवाल को बोल के देखो। एक मौका सानू भी, एक मौका मेरे को देके देखो, हम लोगों को देके देखो, आम आदमी पार्टी को देके देखो, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं बाकी सबको भूल जाओगे, आप जिंदगी भर भूल जाओगे। तो एनहेंसमेंट नहीं लिया जाएगा। एनहेंसमेंट भी एक, इसको मैंने पूरे सिस्टम को स्टडी किया हुआ, ये जानबूझ के किसानों को भी और इंडस्ट्रियलिस्ट्स को भी, दोनों को परेशान करने का एक बहुत अच्छा सिस्टम है, दोनों को निचोड़ने का, पैसा बनाने का एक बहुत अच्छा सिस्टम है। इसको आप लोगों से एनहेंसमेंट नहीं लिया जाएगा, जितना दे दिया आप लोगों ने दे दिया। गुंडा टैक्स किसी ने बोला नहीं, शायद डरते डरते नहीं बोला। ये मैं पहले सुनता था, अकाली दल के समय में होता था, फिर कैप्टन साहब बोले मैं खत्म करूंगा, लेकिन सुना अभी भी चल रहा है कई इलाकों के अंदर गुंडा टैक्स, कि वहां का मंत्री या वहां का कोई आके गेट पे बिठा देता है इंडस्ट्री के, जितने ट्रक जाते हैं हर ट्रक के ऊपर गुंडा टैक्स लगता है और वो फिर पैसा लिया जाता है। तो एक तरह से मंत्री पार्टनर बन गए हैं हर इंडस्ट्री के। ये धंधा बंद करेंगे, ये सारा गुंडा टैक्स का, ये मंत्रियों की एक्सटॉर्शन का, लोकल एमएलए की एक्सटॉर्शन का, महीने का, हफ्ते का, ये सारा धंधा बंद किया जाएगा। 24 घंटे के अंदर हमने प्रस्ताव वापस ले लिया। तो संधू साहब, अगर चाइना के अंदर 24 घंटे में निर्णय होते हैं तो पंजाब में भी 24 घंटे में निर्णय हुआ करेंगे।
और अब आखिरी उम्मीद आप लोगों से है, जालंधर में कितनी सीटें हैं? 9 सीटें। ये 9 की 9 सीटें जिता के देने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। आपकी समस्याओं को दूर करने की जिम्मेदारी मेरी है।